बोलो। तुम ही बोल दो। तुम बोलो। I have nothing to say. You have called, so I'm assuming you have something to say. I really don't. I am just sitting. I am painting my nails. तो फोन क्यों किया? Come tell me good movie to watch. Watch BMCM. Nahin. Tell me horror movie. Watched Caveat. I can't find it. It's very hard to find. आपके पास ये एक ही पिक्चर है हॉरर में बताने लायक? That every time I ask you about horror आप caveat बोल देती हैं बस. I thought you would like Black Phone, but you didn't. Backbone. Black Phone. I didn't. That's old movie. I didn't like it. It was trying to be split. It was really not. It was very thrilling. Very thrilling. Thrilling. Chilling. Thrilling. 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 Hut. Yeah, that thrilling is what I said the first. Abes. You are a Bullocks. Okay. Bullocks cart. Yes, हम ही बुलक्स हैं. आप तो great हैं. Okay, cut this call then. Nice. Did you see my Instagram? Yes, आपने कहा ना Ambani will do 50-second pre-wedding on Mars. And the Bollywood people will still follow in a hot balloon. I was just thinking कि generally when दूल्हा दुल्हन do like all this function, pre-wedding function, which for a normal family is like the 1 or 2 days before the wedding, that alone is very stressful and can lead to fights and ultimate breakup of marriage. How these people are able to do? Because they are not doing. No, but still, chalo, even if you have a whole crew doing it for you and all the arrangement and PR people in the world, event organizers, but still, it is still stressful, yaar. As a doula and dulhan, when you sit at the end of the day and she's like, Anant, yaar, I'm sure they are also stressed. It must be leading to fights. And like, अरे तुमने ऐसे and हमारी फोटो नहीं आई and ये moment viral नहीं हुआ. Like weddings, whilst great, are also very stressful for the couple. Most of them end up fighting either before, after, or throughout the wedding. Because they are fighting. Don't they want to get rid of all that and be like, चलो ये सब stress बंद करो? No, they don't care. Because there's no way that this is giving them pleasure. Chadu, yaar, there is no way that they can break up the wedding. Well, yes, there is probably a prenup around these things. Yes, कि अगर शादी तोड़ी तो हम तुमको तबाह कर देंगे. I don't know if that's the legal language. Yes. But चलो. मैं तुझको कहीं का नहीं छोड़ूंगी. I don't think so. वो legal terms में नहीं चलेगा, madam. This is a legal document. Please, if you would like to add anything in simple language, to be like हाँ लिखो उसमें कि अगर ये शादी टूटो तो तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा. Write it down. I don't think they are getting their people to write this. Must be quite sophisticated. Must be something कि if you break it off before the wedding, then जितना pre-wedding खर्चा हुआ उसका आपको 3 गुना लगान देना पड़ेगा. Yeah, and Anant will also be like जितने आउटफिट्स चेंज हुए हैं तेरे, क्योंकि मैं तो सब जगह चप्पल पहन के गया था, जितने टियाराज लगाए हैं डायमंड एनक्रस्टेड, वो सब इंटरेस्ट वाइज मैं मर्चेंट परिवार से लूंगा. What I am worried about is that nobody is thinking of these poor kids. They are only 28, 29 years old. Well, that's old enough, but still, like, लड़ रहे होंगे, उनका डिसीजन नहीं बन पा रहा होगा. Fine, sure, they don't have the stress of menu and मामा जी कहाँ खड़े होंगे and all that. That's okay, but other stresses are there, ना? चलो, I don't know about the लड़का, but the लड़की must be having, no, मेरा मुंह पे पिंपल आया है and क्या करना है एंड कौन सा डिजाइनर होगा एंड वो ड्रेस रेडी नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल. I guess they are fighting यार. Or maybe they don't see each other throughout. They just like अनंत साहब आप उस दिन यहाँ पर पहुंच जाइएगा, राधिका मैडम आपका उस दिन प्री वेडिंग इवेंट होगा. दे डोंट हैव टू सी, बट देयर मस्ट बी ना, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया एंड तुम्हारे पापा मेरे पापा से ये कह गए एंड ऑल दोस. दीज आर नॉर्मल थिंग्स, नो? मेरे पापा के पास मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाता हूँ. अरे एज इन जब दोनों पापाज मिले होंगे 20th प्री वेडिंग फंक्शन पे, तब हुआ होगा ना मेरे पापा खड़े रह गए और तुम्हारे पापा वहीं बगल से निकल गए. उन्होंने उनको देख के हाँ, मेरे मुस्कुराया भी. पापा तो इम्पोर्टेंट यार. अरे मेरे पापा भी तो इम्पोर्टेंट हैं. हाँ, लेकिन मेरे पापा अंबानी है यार, तू समझ नहीं रही है. अच्छा, मतलब तुम्हारे पापा अंबानी और हमारे पापा कुछ नहीं. तुम्हारे पापा मर्चेंट, मेरे पापा अरमानी नहीं अंबानी. तुम्हारे पापा अरमानी भी, खैर who knows, maybe you own अरमानी, we don't know. यस, तो उनकी मीटिंग थी, वो चले गए. बोर्ड मेंबर्स बैठे थे,
मेरी मामी आई थी यूएसए से इतना फ्लाइट लेके, तुम्हारी मम्मी उनसे हेलो भी नहीं कर सकती थी? मम्मी खुद बोर्ड में है, उनसे बोर्ड मेंबर्स वाले से बोलो कि राधिका की मामी आई है, उनसे नमस्ते करना है। दिस इज नॉट वर्किंग आउट अनंत। ठीक है, लीगल प्रीनप एक बार खोल के देख लेना। रहने दो, इट्स वर्किंग आउट, चलो नाचे। यस, और मैंने डांस के स्टेप्स प्रैक्टिस नहीं करे हैं, तो मैं बस ऐसे ही हिलूंगा। ओके फाइन, चलो चलो क्रूज पे नाचे। कौन सा गाना है? अरे कोई भी बजा देंगे, खान्स एंड कपूर्स वेट कर रहे हैं। चलो यार, पेपरैट्जी आ गए कि नहीं? पेपरएट्जीज तो हमारे खिड़की पे अपना लेंस लगाए खड़े हैं। पेपरएट्जीज को पता चल गई है इस फाइट के बारे में। अगर इस खबर बाहर निकली, वो तुम अपने पापा से बोलो बंद करवाएं। ओके पापा, अरे पापा। क्या है यार बेटा, मेरी बोर्ड मीटिंग चल रही है यहाँ पर। मेरी शादी, पापा जो आपने 100 प्री वेडिंग फंक्शन अरेंज करे हैं। अरे ये सारे जियो के इन्वेस्टर्स आए हुए हैं बेटे, उनको कैसे बोल दूं कि पेपरैट्जी से जाके डील करना है मेरे को अभी। पर जियो ओन्स द मीडिया हाउस ना पापा, तो आप बात करिए उनसे कि आर्टिकल हटवाएं, देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज वाला हटवा दें। चलो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को फोन लगाओ। जीएम तुम उससे बात करो। सर मुझे क्या बोलना है? अरे बोलो कि ना छापे यार। ओके सर, चलो जीएम को भेज दिया है। थैंक यू पापा। वो खान्स एंड कपूर्स वेट कर रहे हैं आपका शिप पे। राधिका ठीक है? राधिका के साथ तो लड़ाई नहीं करी तुमने? वही तो लड़ाई पेपरएट्जी ने, पापा आप सुन ही नहीं रहे हैं चलो पापा। बेटा बेटा, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट पढ़ा है तुमने? हाँ तो वही मैंने उसको याद दिलाया ना, तो बोली कि ठीक है लेट्स डांस। लेकिन तुमने भी तो पढ़ा होगा ना बेटा, वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये याद लिखा है दिलाया। उसने। करेक्ट पापा, तो उसने कहा कि चलो देन लेट्स फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। हाँ तो तुम भी कह दिया करो बेटा, दोनों ने अपने प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। ये वैसे हम लोग काफी पढ़े लिखे हैं पापा, ऐसा हमने क्यों लिखा है पता नहीं, पर चलिए कुछ होगा। ये हमारे बाकी के परिवार के लिए है। यूएस की उसकी फैमिली, जरा उससे नमस्ते कर दीजिएगा आप वहीं से मुंह हिला के निकल गए थे। ठीक है बेटा, मैं जाऊं? मेरे बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं अंदर, मक्खी मार रहे हैं जाइए, मम्मी का है। पार्लर में, और वो होती कहाँ है? ओके जाइए पापा, आपके आप ही के भरोसे तो ये शादी हो रही है। हाँ, और मेरे भरोसे ही तुम लोग जिंदा भी हो। ओके पापा। बेटा तुम भी कभी कभी बोर्ड मीटिंग में आ जाया करो। मैं सेंचुरी चला रहा हूँ पापा। लेकिन ये कारोबार तुम्हीं को संभालना है ना बेटा। पापा मेरी शादी, आप ये क्या फालतू बातों में लग गए? अरे हाँ, ये भी बात है, अंदर मेरे बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं। मुझे जाने दीजिए, मुझे शेरवानी पहननी है। जाओ बेटा जाओ, पहनो। आप कब रेडी होंगे पापा? मैं ऐसे ही चला आऊंगा। ये शर्ट वैसे ही मुझे देखता कौन है, सारा तो फुटेज तुम्हारी माँ खा जाती है। पर मम्मी के साथ आपको पोज करना है ना पापा आप। हाँ किया था, उस दिन हाथ पकड़े की कोशिश करी थी मैंने, उसने झटकार दिया था। उनका गेटअप, आप गलत प्रोफाइल में आ गए थे, आपको लेफ्ट साइड से आना था इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, वो तो पापाराजी ने ले लिया ना, और मैं हंसते हंसते साइड हो गया था, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं। मिस्टर अंबानी, आपका वेट हो रहा है बोर्ड रूम में। सॉरी सॉरी जेंटलमैन, आई एम कमिंग। मैं जाऊं बेटा? जाओ जाओ पापा, जस्ट मेक श्योर हमारी लड़ाई ना आ जाए पेपर में। हाँ जीएम को भेज दिया है। ओके थैंक यू पापा, बाय। बाय बाय बेटा। चलो यार शाडू, आई रियली फील फॉर दिस अंबानी यार। I really feel for him too, but I also feel कि they are not doing good यार। ऐसा I'm sure there is लड़ाइयाँ happening. I just think it's too much pressure यार for a young couple साला। Nobody cares यार, they are loaded। I know, but लड़ाइयाँ तो पैसे से solve नहीं खैर हो सकती हैं। होती हैं, आपके पास इतने पैसे होते तो आप भी सॉल्व कर ही लेती हैं। You can, but it is too much pressure यार। I'm sure at some point they are feeling like कि भाग के शादी कर लेते हैं। Not one, I'm sick and tired of Bollywood and Ambani. It's bloody everywhere। That is algorithm। I don't care, it's being fed to me every day। I just think Bollywood has nothing else to do now because they are not making good movies। साला कोई इस साल तो पिक्चर को आ नहीं रही है अच्छी, ना हॉल में कोई रिलीज हो रही है। I think it's just a bit like चलो नाचें गाएं, इन्फ्लुएंसर बन जाएं। चलो cut this call। टाटा। My lunch is finished। Okay, what you ate? लौकी and बैंगन।
Disgusting. Hang up this bloody phone. Shadu, your people are disappointing, yaar. Yes, yes, such is life. Why are people so disappointing? That is जिंदगी. जिंदगी की यही रीत है. हार के बाद ही जीत है. I don't think I'm talking about haar jeet. But that is the one line I know about जिंदगी, so I have said it. जिंदगी अरे की गाने की जरूरत नहीं यही है. We all know the song. There is no need for you to sing it. चलो कट. अरे जिंदगी यार. sauce. Do you like Diljit? I love. You love? I love Okay, who do you like? Diljit. What Diljit you love? I like nobody. I only love or hate. Kota Factory series season 3 is out. I have not watched that show ever. चलो कोटा फैक्ट्री नहीं देखा आपने? No, क्यों? I don't know. I didn't get into it early on and then it was too late. You can still get into it. Arey, but they are saying season 3 is not good. They are saying season 3 is great. Shadu, watch yaar all seasons. Watch it. But it's similar, nah. It's same as Panchayat, same but school format. It's not. It's really not same. Pagals. Are you sure? It's about IIT, no? It's about the kids who are prepping for IIT, yaar. But I don't know if I relate, nah. Maybe just watch it, Shadu. In next Janam, you will still be Indian. Arey, it's not about being Indian or not. It's about like I don't know if I relate to this whole student life. तब अगले जन्म में relate करेंगी ना शायद. अरे पर तब तक हमें कोटा फैक्ट्री थोड़ी याद रहेगा अगले जन्म में कि पिछले जन्म में हमने एक सीरियल देखा था. Soul remembers. अरे यार. The point is the student life and all this love story and all. यार, I'm too old for this crap. It's not student love stories. It's not SOTI. अरे not SOTI, like student life and love stories and all this. It's not student. Shadu, just watch it. I will, but just saying that अब हमारा इन सब चीजों में नहीं है life. What is the deal with this Bianca Sensori? I don't know what that is. Kanye West की बीवी, the one who walks around nanga. She is ex-BB na. She is current baby. चलो, they have broken up. He is going to make her the star of his pornography channel. Oh, yeah, the pornography channel. He is starting. Wow. I thought they are not together anymore. चलो उनको पता ही नहीं है बियांका सेंसोरी के बारे में. No, I have heard of her now that you said it. I didn't realize that they are still together. Kanye West का हम keep up नहीं कर रहे हैं ना, maybe that's why. Kanye West. Kanye. You are a joke, हाँ? You are a joke. You are a joke. क्यों ऐसा हमने क्या कर डाला? Joke is you. Sorry, हमें माफी दे दे. You're not a joke. You're a joke with a A A E E A U ang au ang aha. क्या है? क्या है? Those are the letters, the alphabets. A A E E A U A U ao ang aha. I don't know what the hell. क्या आप बंदर की तरह बोलना चाह रही हैं? Those are alphabets in our मातृभाषा. Maybe you have forgotten. अच्छा, I have forgotten. अभी आपने जो बंदर की ऊ आ किया. Yes, that is the alphabets. Or if you prefer the song version, then there is a song version. A A E U U U. मेरा दिल ना तोड़ो. That's the song version. ई. अरे मत करो. Sorry, I am sorry. हमें माफ कर दें. ऊ ई ऊ ऊ ऊ ऊ. मेरा दिल ना तोड़ो. रूठ के न जाओ मेरी जान. चुप हो जाओ. चुप हो जाओ. You are real बंदर. चलो काटो यार. काट काट काट. काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं आप. चलो पोपो बोलो. चलो ओके. पोपो. काट इट. हमी को काटना है. यस, हमारे नाखून सूख रहे हैं. चलो यार हमारा दिल सूख रहा है लेकिन ओके नेवर माइंड. टाटा बाय. एंजॉय लाइफ.